Good evening, students. Welcome to another lecture of the mathematical tools for physics. Today we'll be discussing on integral calculus. Last classes we have discussed trigonometry and then differential calculus. Today we'll be focusing on integral calculus. Now, what is integration? Integration is a process which is just opposite of differentiation. And differentiation, what we are trying to do was we were trying to ascertain the slope of a curve. Here in integration is related to the area under the curve. So before going into the nitty-gritties, let us first see what is area. Area of we know area of many geometrical shapes. Suppose area of a rectangle, we know by the formula, if this side is length and this side is breadth, then area is equal to L into B. If there is a triangle, suppose this is a triangle, okay, and if it has a altitude h and this is the base, so area of this triangle will be half base into height, and so this area is half base into height, and this area of the rectangle is length into breadth. So this is known to you. Now suppose I put this into a graph, then how we will calculate this? Let us see. Now in the last lectures for differentiation, we had discussed that if y is a function of x, we can write y is equal to fx. That means y, if it is a function of x, that means the value of y depends on the value of x. As the value of x changes, the value of y will also change. So if y is a function of x, suppose this a certain process, we have defined a process, a physical say quantity which is y, which is dependent on certain another independent quantity, variable quantity x. Suppose I want to draw a graph. I want to draw a graph, and suppose it is like this. It is like this. Suppose it starts at a distance a from the x-axis, from the origin in x-axis, and ends at point b from origin. Okay, this is a process. Suppose this is a process, y is equal to fx. ओके, है ना, समझ में आपको? अगर ये एक प्रोसेस है, y इज इक्वल टू एफ एक्स, इट्स अ स्ट्रेट लाइन, स्टार्ट होता है एट x इज इक्वल टू a और ख़त्म हो जाता है x इज इक्वल टू b. ओके, तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं x एक्सिस पे, and this area under this curve, area under this graph will give us a quantity, total quantity of y. Okay, ये क्या दे देगा? Quantity दे देगा y का, which is a function of x. Suppose this is y1 and this will be also be y1. ये तो कोई change नहीं हो रहा है. Suppose this is a function of x, यानी इसकी वैल्यू डिपेंड करेगी x में. सो दिस इज फंक्शन ऑफ x है, यहाँ पे भी दिस इज फंक्शन ऑफ x. अगर इसका यानी आप देखें कि अगर इसकी हाइट fx है और विड्थ क्या होगा, इसका विड्थ जो होगा इसका वो होगा b माइनस a. इसका विड्थ क्या होगा? b माइनस a. सपोज इसको ना b माइनस ए ना लिख के मैं इसको लिख देता हूँ x1 x2. सो व्हाट इज दिस? दिस इज x2 माइनस x1. और इसको अगर मैं बोल दूँ दिस इज चेंज इन x, चेंज इन द वैल्यू ऑफ x, डेल्टा x. व्हाट इज दिस? दिस इज अ चेंज इन द वैल्यू ऑफ x, दैट इज डेल्टा x. सो एरिया हियर विल बी fx
डेल्टा एक्स। ईजी, ये तो रेक्टेंगुलर शेप में है, हम आराम से निकाल लेंगे इसका एरिया। सो व्हाट इज़ द एरिया इस पूरे प्रोसेस का? एफ एक्स डी एक्स। बहुत सही, ज़्यादा कोई परेशानी नहीं। ओके, सो एज वी आर familiar with the notion of area and formula of area of simple geometrical figures like rectangle or triangle, so it is very easy, ये हमको मालूम है। हाँ, अब ये क्या हो रहा है यहाँ पे, एफ एक्स इज़ अ कॉन्स्टेंट, क्योंकि विथ एक्स द वैल्यू ऑफ वाई इज़ नॉट चेंजिंग। यहाँ पे हम देखें कि दिस फंक्शन ऑफ एक्स इज़ अ कॉन्स्टेंट, इट इज़ नॉट चेंजिंग विथ when the axis x is changing, y is not changing। तो ये कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन में देयर इज नो डेल्टा y, यहाँ पे डेल्टा y चेंज हो ही नहीं रहा, यानी ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन है और इट इज़ पैरेलल टू x। कोई परेशानी नहीं होगी, आप बस उस फंक्शन को चेंज इन x से मल्टीप्लाई कर दो, एरिया मिल जाएगा। लेकिन कंसिडर अ प्रोसेस इन विच दिस इज़ नॉट कांस्टेंट। हाँ, ये कांस्टेंट नहीं है। सपोज़ एक प्रोसेस है, वो स्टार्ट यहाँ से होता है और ये यू या एंड हो रहा है। स्टार्ट ऐसा हुआ और एंड यहाँ हुआ। सपोज़ अगेन मैं अगर इसमें एक ड्रॉ कर देता हूँ परपेंडिकुलर, तो ये सपोज़ ये x1 है, ये x2 है, दिस इज y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x है ना। यानी इस जगह पे एक y की वैल्यू होगी से y1 और इस जगह पे एक y की वैल्यू होगी y2। ओके, नाउ आई हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस, एरिया अंडर दिस कर्व। यहाँ से लेके यहाँ तक जो कर्व है, इसके नीचे का जो एरिया है ये निकालना है। अब ये कोई रेगुलर फिगर तो है नहीं, ये ना ये ट्रायंगल है ना ये रेक्टेंगल है, तो इसका एरिया निकालना तो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। अब क्या करें इसमें, है ना, हमने ये परपेंडिकुलर भी ड्रॉप कर दिया, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं कि चलो ठीक है, इसको एक इधर से एक और परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, ये जो है इतने का मिल जाएगा। लेकिन फिर इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, राइट नाउ वी डू नॉट हैव एनी फॉर्मूला, ये कोई इरेगुलर शेप है। तो क्या करा जाए कि हमको इसका एरिया अंडर दिस कर्व हमें मिल जाए। ठीक है, तो हम क्या करें इसके लिए, क्या कैसे करें इसको? तो हम क्या करते हैं कि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू अप्रॉक्सीमेशन लेते हैं। हम क्या करते हैं कि भाई ऐसे तो पूरा नहीं ले सकते, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको छोटे छोटे विड्थ में डिवाइड करते जाते हैं। इस एरिया को छोटे छोटे विड्थ में डिवाइड करते जाते हैं। इसको डिवाइड किया, तो सपोज़ मैं यहाँ पे इस जगह पे मैं लेता हूँ और इसको ले लेता हूँ, ये डिवाइड कर दिया। इतने पतले पतले स्ट्रिप में n नंबर ऑफ स्मॉल, ये जो थिन स्ट्रिप में इसको डिवाइड कर दिया। सब इसको देखिए, आप इसको इस जगह को देखिए। अब ये क्या हो गया, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू अ रेक्टेंगल। व्हाट इज़ दिस? इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू अ रेक्टेंगल। सपोज दिस इज अगेन मैं यहाँ पे x1 x2 लिखा हूँ। सपोज दिस इज से x, दिस इज xi। सपोज ये एक xi है और इसके बगल वाला जो है वो xi+1 है, ऐसा ले लेते हैं, है ना। तो इसका जो विड्थ क्या हो गया, वो हो गया अगेन डेल्टा x इज इक्वल टू xi+1 माइनस xi। आज ये सब इक्वल यानी थिकनेस के हम बहुत ही पतले पतले स्ट्रिप्स ले लेते हैं। अब इसमें आप देखिए, है ना, यहाँ पे इसकी y की कुछ वैल्यू होगी, हम निकालने के लिए किसी एक को ले लेंगे। भाई इसके y की वैल्यू कोई एक है, ये है या ये है ना। अब इसमें इन दोनों में बहुत कम डिफरेंस है और ये ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन की जगह है जैसा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी फंक्शन
y की वैल्यू है, या तो एक्स आई फंक्शन ऑफ एक्स आई होगा या फंक्शन ऑफ एक्स आई प्लस 1 होगा, दोनों में से कोई एक ले लेते हैं, है ना। फंक्शन ऑफ एक्स आई मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा एक्स, ये उस जगह का स्ट्रिप का थिकनेस हो जाएगा, उस जगह के स्ट्रिप का थिकनेस हो जाएगा। अब मैं थोड़ा इसको और डिटेल में अच्छे से समझाता हूँ। हमने इस कर्व का एरिया अंडर दिस कर्व ये निकालना है। अब मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके दूंगा तो आपको दिखाऊंगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में। आई वॉन्ट टू मेक इट बिगर फॉर यू टू अप्रिशिएट। हाँ, ओके, सो नाउ now there are two axes, है ना, और there is a process which has started from here at x is equal to a and at x is equal to b. Now this is a process, the process is y is a function of x. Now what I want to do is I want to calculate the area under this curve. I have divided this into equal strips. बहुत सारे strips में इसको मैंने divide कर दिया। I will just do it, है ना। आपके अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे आपको शायद इक्वल थिकनेस में नहीं दिखेगा, बट वी आर एज्यूमिंग कि ये सब इक्वल थिकनेस में मैंने इसको डिवाइड कर दिया। बहुत ही पतली पतली स्ट्रिप में इसको डिवाइड कर दिया। नाउ दिस इज अप्रॉक्सीमेटली एक रेक्टेंगल है ना। और ये अगर ये सपोज यहाँ ये XO है तो ये x1 है, ये x2 है, x3 है, x4 है, x5 है एंड सो ऑन। ठीक है, तो अगर इन दोनों का जो स्ट्रिप थिकनेस है वो है डेल्टा एक्स, है ना। सबका डेल्टा एक्स इक्वल है, इक्वल स्ट्रिप थिकनेस में। सपोज दिस स्ट्रिप थिकनेस इज डेल्टा एक्स। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y हेयर? इट विल बी फंक्शन ऑफ XO, और इसका भी लगभग, इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं हो रहा है, तो इट विल बी फंक्शन ऑफ x1। तो मैं या XO ले लूँ या x0 ले लूँ या x1 ले लूँ, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो A1 एरिया A1 विल बी fx1 डेल्टा x। व्हाट इज A1? इसका एरिया क्या है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ब्रेड्थ है डेल्टा x, लेंथ हो गया fx1, ये वाला हो गया। तो y इज इक्वल टू fx1, y की वैल्यू हमको fx1 से मिल गई। ठीक है, ऐसा ही A2 विल बी फंक्शन ऑफ x2 डेल्टा x। A3 विल बी इक्वल टू फंक्शन ऑफ x3 डेल्टा x। ऐसा ही हमको अप टू n, सपोज n स्ट्रिप्स में बांट दिया तो an इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ xn डेल्टा x। ये सारे एरियाज मिल गए जो अप्रॉक्सीमेटली हमको एक रेक्टेंगुलर एरिया, इसको अगर मैं रेक्टेंगुलर एरियाज में डिवाइड कर दूं तो ये हमको ये अप्रॉक्सीमेटली देता है। अब मुझे टोटल एरिया चाहिए तो मैं सबको जोड़ देता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं टोटल एरिया विल बी A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस अप टू AN। ओके, अब कई बार क्या हम जब मैथ्स में पढ़ते हैं, जब जितने सारा को करते हैं तो उसको एक सिंबल से दिखाते हैं। उसका सिंबल है समेशन, है ना। तो दैट विल बी टोटल एरिया अप्रॉक्सीमेटली विल बी समेशन, क्या वो इसको क्या बोलते हैं, समेशन ऑफ f x i, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ f x i डेल्टा x, है ना, वेयर i इक्वल टू 1 और i इक्वल टू कैपिटल N।
ये सारा इसको मैं जोड़ देता हूँ तो ये टोटल इसका एरिया निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन आप अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो यहाँ पे इतना एरिया तो छूट गया, इसको हमने कंसिडर नहीं किया। यहाँ पे भी इतना एरिया छूट गया, इसको कंसिडर नहीं किया। यहाँ पे भी इतना एरिया छूट गया, यहाँ पे भी इतना छूट गया। तो हम जो भी निकाले हैं वैल्यू वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, ये टोटल वैल्यू नहीं है इसका, यानी जो है एक्चुअल वैल्यू नहीं है। इतने तो हम छूटते गए, अप्रॉक्सीमेटली ये इतना आ रहा है। लेकिन मैथ्स में अप्रॉक्सीमेशन बहुत ज़्यादा हम कर नहीं सकते। हम क्या कर सकते हैं, इसको हम ये कर सकते हैं कि ये जो स्ट्रिप थिकनेस है उसको इतना छोटा कर दें, इतना पतला कर दें, इनफाइनेटली स्मॉल कर दें उसको, कि ये जो है जो एरिया छूटे ही ना, है ना। इसको इतना स्मॉल कर दें इसकी स्ट्रिप्स के विड्थ को कि ये छूटे ना, है ना। यानी इसका मतलब है व्हाट वी आर ट्राइंग टू डूइंग इज वी आर ट्राइंग टू डू इस डेल्टा एक्स को टेंड्स टू 0 की तरफ कर दें, या व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज जो n है टेंड्स टू इन्फिनिटी, है ना, इसको इनफाइनाइट छोटे टुकड़ों में बांट दें। व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज हम इसको इनफाइनाइट पतले पतले स्ट्रिप्स में बांट दें। तब क्या हो जाएगा कि ये अप्रॉक्सीमेशन नहीं होगा, ये टोटल इसका एरिया हमको मिल जाएगा, टोटल इस एरिया अंडर कर्व को मिल जाएगा। एंड देन व्हाट विल डू इज विल चेंज इट, है ना, उसका साइन चेंज हो जाता है। व्हाट विल राइट हियर इज टोटल एरिया अंडर दिस कर्व विल बी इंटीग्रेशन, है ना, ये एक कर्व्ड एस की तरह लिखाया जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स और डी एक्स, है ना, डेरिवेटिव एफ एक्स डी एक्स। और कहाँ से कहाँ तक इसका लिमिट हमने बोला कि भाई ये ए से बी तक, तो ये पूरा इसका एरिया दे देगा, है ना, क्योंकि हमने n को इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिप्स में इसको बांट दिया है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमको एरिया अंडर कर्व बहुत अप्रॉक्सीमेशन नहीं, हमको एग्जैक्ट मिल जाएगा। और उसको हम ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन ऑफ x, और इंटीग्रेशन ऑफ y डी एक्स भी लिख सकते हैं इसको, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। एंड व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज वी आर ट्राइंग टू कैलकुलेट द एरिया अंडर दिस कर्व। तो एरिया अंडर द कर्व क्यों निकालते हैं? बहुत सारे फंक्शंस में हमको यूज़ होता है कि एरिया अंडर कर्व से हमको बहुत सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू मिल जाती है जो कि वेरिएबल हैं। दीज आर वेरिएबल, है ना, इट इज़ नॉट कांस्टेंट, इट इज़ अ वेरिएबल प्रोसेस। व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज इट्स अ वेरिएबल प्रोसेस। सपोज फोर्स वेरीज, है ना, व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज फोर्स तो पल पल में वेरी कर रहा है, और सपोज वर्क डन निकालना है, हमको वर्क डन निकालना है, तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो एट डिफरेंट पॉइंट्स द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर डिफरेंट, द अमाउंट ऑफ फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट आर डिफरेंट। तब हम उसको क्या करना पड़ेगा कि हमको वहाँ पे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, छोटे से पतले स्ट्रिप में कैलकुलेट करके उसको पूरे एरिया के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन इज़ अ वेरी बिग टॉपिक फॉर क्लास 12 मैथ्स, है ना। इट टेक्स अ नंबर ऑफ पीरियड्स टू टोटली अंडरस्टैंड इंटीग्रेशन। हम क्या कोशिश कर रहे हैं, हम अपने फिज़िक्स के लिए उसको कितना ये उसका फिज़िकल इंटरप्रिटेशन है, इंटीग्रेशन होता क्या है। एंड नाउ देयर आर सर्टेन फार्मूलाज, उसको हमको याद करके इसको इम्प्लीमेंट करना। आगे के हमारे बहुत सारे चैप्टर्स में इंटीग्रेशन का काफ़ी जगह यूज़ होगा, डिफरेंशिएशन का भी होगा, इंटीग्रेशन का भी होगा। सो व्हाट विल ट्राई टू डू इज़ एज एंड व्हेन वी आर डूइंग दैट पार्ट, तब हमको इसको ये रिवाइज करना पड़ेगा और हमको ये समझना पड़ेगा कि व्हाट इज़ इंटीग्रेशन। ओके, तो देयर आर सर्टेन फार्मूलाज जिसको हम लिखेंगे। एज आई टोल्ड यू दैट इंटीग्रेशन इज रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। तो थोड़ा सा हम फार्मूलाज को ना रिलेट करके देखते हैं कि रियली में ये डिफरेंट है, ये रिवर्स है नहीं है। तो देयर इज़ अ फार्मूला इन डिफरेंशिएशन, इफ डिफरेंशिएशन डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर
n, इसका है फॉर्मूला n x टू द पावर n माइनस 1, डी डी एक्स ऑफ x टू द पावर n विच इज n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। यहाँ पे थोड़ा सा इंटीग्रेशन में हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx, है ना, थोड़ा सा ध्यान देंगे, याद रखेंगे, इज इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। और ये इनडेफिनिट इंटीग्रल है, तो इसमें एक कांस्टेंट वैल्यू भी आ जाएगा, उसको हम अभी छोड़ देते हैं। ओके, अब थोड़ा सा हम समझेंगे कि ये इनडेफिनिट इंटीग्रल और डेफिनिट इंटीग्रल में डिफरेंस क्या है। इनडेफिनिट इंटीग्रल में लिमिट्स नहीं दिए होते हैं, देयर इज़ नो लिमिट, लेकिन डेफिनेट इंटीग्रल में लिमिट्स दिया होता है, जैसे सपोज a टू b या 1 टू 3, है ना, ऐसा लिमिट दिया रहेगा, तो वो डेफिनेट इंटीग्रल है। उसका एक एग्जांपल हम लेके उसको समझेंगे, व्हाट इज़ डेफिनेट इंटीग्रल और इनडेफिनेट इंटीग्रल। सपोज इसी को ही हम समझ लेते हैं, है ना। सपोज वी हैव टू इंटीग्रेट x स्क्वायर dx, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx विल बी, अगर ये फॉर्मूला से देखें तो क्या हुआ, x टू द पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, दैट मीन्स x क्यूब अपॉन 3। इस फॉर्मूला में अगर हम रख देते हैं तो ये हो जाएगा x क्यूब अपॉन 3। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx, x क्यूब अपॉन 3। अब सपोज मैं सेम चीज़ को इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx और लिमिट यहाँ पे 1 टू 2 लगाता हूँ, है ना, तो ये हो जाएगा डेफिनेट इंटीग्रल। और इसका फॉर्मूला क्या होगा, अगेन x टू द पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, बट यहाँ पे हमने लिमिट लगा रखा है, लिमिट है, अपर लिमिट है 2 और लोअर लिमिट है 1। तो ऐसे इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसको ऐसे कैलकुलेट करेंगे कि सपोज इसका ये है x क्यूब अपॉन 3, फिर से मैं लिख देता हूँ 2 1, तो इसी में इसमें पहले अपर वैल्यू को लगाएंगे, इसको रिप्लेस x में अपर वैल्यू को लगा के रख देंगे, फिर उसको माइनस करेंगे लोअर वैल्यू से। दैट मीन्स इसको अगर मैं लिखता हूँ 2 अपर वैल्यू है तो 2 क्यूब अपॉन 3 माइनस 1 क्यूब अपॉन 3, ये वैल्यू आ जाएगी इसकी, है ना। सो एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रल इज़ अ फंक्शन, बट डेफिनेट इंटीग्रल में हमको जो मिलता है वो वैल्यू मिलता है, एक नंबर मिलता है। तो यहाँ पे हमको ये वैल्यू मिल गई, ये है 2 क्यूब इज़ 8 अपॉन 3 minus 1 upon 3, that means the answer is 7 upon 3. This is the value of this function. तो this is what, this is the area under this curve. इस फंक्शन का जो कर्व है उसका ये वैल्यू हो गया। ओके, सिमिलरली अब थोड़े 2-4 और कर लेते हैं एग्जाम्पल्स, ताकि आपको क्लियर हो जाए, है ना। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैंने बताना भूल गया, यहाँ पे एक कंडीशन है, n is not equal to -1, n is not equal to -1। अगर n -1 हो गया तो यहाँ पे देखेंगे -1 प्लस 1 ये हो गया 0, और किसी चीज़ को हम 0 से डिफाइन करेंगे, डिवाइड करेंगे, इट इज़ नॉट डिफाइंड इन मैथमेटिक्स। तो अगर x इज इक्वल टू सपोज -1 हो जाता है, तो अगर x इज इक्वल टू n इज इक्वल टू -1 यानी x टू द पावर -1, इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन x। क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन x। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, थोड़ा सा हम इधर जाते हैं वापस डिफरेंशिएशन में, dx ऑफ log नेचुरल x was 1 अपॉन x, है ना। डिफरेंशिएशन ऑफ log x was 1 अपॉन x, तो ये बस उसका उल्टा हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x dx इज इक्वल टू log x। देखिए
डिफरेंशिएशन ऑफ log x वॉज 1/x, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इज log x, है ना, इसको भी याद रखेंगे आप। ओके, अब सपोज मुझे एक नंबर है 1, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx इज इक्वल टू x। ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ? तो ये जो 1 है इसको मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 0 dx, x टू द पावर 0 dx, है ना। अब इसका मैं इसी फॉर्मूले में अगर रख देता हूँ, x टू द पावर 0 + 1/0 + 1, x टू द पावर 1/1 यानी x। ठीक से, यानी ये बहुत सिंपल है, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x। ओके, ठीक है। अब कुछ दूसरे फॉर्मूलास में चलते हैं। है ना, so we had seen differentiation of e to the power x was e to the power x, so integration of e to the power x dx will be e to the power x. Again, differentiation of sin x was cos x. Differentiation of sin x was cos x, so integration of cos x will be cos x dx will be sin x. Now differentiation of cos x was minus sin x. Differentiation of cos x was minus sin x. So integration of sin x dx will be minus cos x. Integration of sin x dx will be minus cos x. अच्छे से याद रखेंगे इसको। अगेन डिफरेंशिएशन ऑफ 10x was sec square x. So integration of sec square x dx will be nx. Again, differentiation of cot x was minus cosec square x. So integration of cosec square x dx will be minus cot x. तो ये अभी हम बहुत ही बेसिक फॉर्मूलास में जाएंगे, विल नॉट गो इनटू डीपर फॉर्मूलास। ओके, आप लोग इतना ही समझ लीजिए, एंड जैसे जैसे हम आगे फिज़िक्स पढ़ते जाएंगे आपको और बताते जाएंगे। कुछ थ्योरम्स हैं, उस थ्योरम्स को ज़रूर आप समझ लीजिए, है ना। तो सबसे पहला थ्योरम ऑफ इंटीग्रेशन जो है बहुत सिंपल, जैसा डिफरेंशिएशन में था वैसे इंटीग्रेशन में दिल भी। सपोज u, v and w are some function of x. Suppose u, v and w are some function of x and we have to integrate it with respect to x. So integration of u plus minus v plus minus w dx, इसको इंटीग्रेट करना है तो इट्स वेरी सिंपल, सबको अलग अलग इंटीग्रेट कर दो। सो इंटीग्रेट u dx प्लस माइनस इंटीग्रेट v dx प्लस माइनस इंटीग्रेट w dx। ओके, इसमें एक सवाल कर लें, इस पर एक सवाल कर लेते हैं। इफ आई हैव टू इंटीग्रेट एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एक्स प्लस 1/x dx, आई हैव टू इंटीग्रेट दिस, तो कैसे करेंगे? इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx
plus integration of 1 upon x dx. So x square dx integration will be x to the power 2 plus 1 upon 2 plus 1 minus cos x dx. Integration of cos x dx is sine x. Then integration of 1 upon x dx is log x. So the answer is x cube upon 3 minus sine x plus log x. ये आंसर हो गया. बहुत फास्ट कर दिया मैंने, लेकिन इसको आपको एक आइडिया दे दिया कि इसको आप ऐसे इंटीग्रेट कर सकते हैं. तो दिस वाज फर्स्ट थ्योरम. Okay, second theorem is if a constant is multiplied by some value or some variable of x, so what will happen if there is a c, a constant u dx. So if I want to integrate this, it is equal to constant को मैं इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लूँगा and u dx. That's it. कांस्टेंट को, जो कांस्टेंट है उसको मैं बाहर निकालूंगा इंटीग्रेशन से और बाकी जो बचा उसको इंटीग्रेट करूंगा. फॉर एग्जांपल इंटीग्रेशन ऑफ 5x स्क्वायर dx इज इक्वल टू 5 बाहर निकाल दिया. इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाय x to the power 2 plus 1 upon 2 plus 1, that means 5x cube upon 3. This is the integration of this. Now इसमें एक और मल्टीप्लिकेशन वाला जो इंटीग्रेशन है, if u and v are two functions of x and suppose there is integration of u v dx, तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा टेढ़ा है और अभी आपके पढ़ने के लायक नहीं है, तो इसको अभी हम ओमिट करते हैं, इसको छोड़ देते हैं. कुछ सवाल आपको करके दिखाया मैंने और कुछ सवाल मैंने आपको होमवर्क में दिया है, तो यू कैन ऑल्सो गो थ्रू दिस फार्मूला और होमवर्क जो है उसको करिए. अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो देन विल रिवाइज. ओके, सो दिस वाज अबाउट द टॉपिक इंटीग्रल कैलकुलस. आई हैव मूव्ड वेरी फास्ट and we have to move very fast, and as and when it is required to revise it, we will do that revision. Okay, thank you.